Hello, students. I hope you all are doing well and preparing well for your examinations. I am CS Anupama Pandey here before you with the revision of chapter number 9 of your Capital Market and Securities Law subject. So, this chapter is very important from both exam as well as practical point of view. So, I hope you all have gone through the revision of chapter number 1 to 8, which has already been uploaded on this channel. So, what I do whenever I come up with the revision of various chapters, I present before you the summarized notes which I have prepared. You may pin me on the number visible on the screen and I will provide you the same. So, let's begin. So, our chapter's name is Shares Based Employee Benefits and Equity Shares Regulations. So, this chapter is about how listed companies reward employees with shares and share linked benefits and how sweat equity shares are issued. So what happens is इसके पहले SEBI issue of sweat equity regulations 2002 and SEBI share based employee benefits SBEB जिसको बोलते हैं regulation 2014 आपके अलग अलग थे. So later what was done कि इन दोनों regulations को merge कर दिया गया and आपका ये वाला regulation आया SEBI share based employee benefits sweat equity regulation 2021. सो यहाँ पे उसका ब्रीफ बैकग्राउंड दिया हुआ है कि आपकी एक यहाँ पे सेबी की एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी बनी जिन्होंने ये एनालाइज किया कि दोनों रेगुलेशंस में हम इसे मर्ज कर सकते हैं क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आनी है एंड फिर सजेशंस आया कि दोनों को हमें कंबाइन करना है एंड ये रेगुलेशन आपका पास हुआ 2021 में एंड इफेक्टिव हुआ 13 अगस्त 2021 से. सो एप्लीकेबिलिटी क्या है इस रेगुलेशन की. सो एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टू क्राइटेरियाज कौन कौन से स्कीम के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है और कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है. सो द स्कीम्स ऑन विच आपका ये वाला रेगुलेशन एप्लीकेबल है यार. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स स्कीम, एम्प्लॉयज जनरल एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम एंड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. एंड व्हाट ऑल आर द कंपनीज जिनके ऊपर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है. सो एनी कंपनीज हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया and which seeks to issue sweat equity shares or has any employee share based scheme like ESOP, ESOS, SAR, etc. is in place for direct or indirect benefit of employee and which involves dealing in or subscribing to or purchasing securities of the company directly or indirectly and which satisfy directly or indirectly any of the following condition, which is the scheme is set up by the company or any other company in its group, the scheme is funded or guaranteed by the company or any other company in its group, or scheme is controlled or managed by the company or any other company in its group. So कोई भी यहाँ पे outsider party is not involved to control and look after the scheme. So ये एक basic conditions है आपकी तीन जिनके ऊपर एक आपका जो रेगुलेशन होगा ये एप्लीकेबल होगा कि सबसे पहले उसका एक लिस्टेड कंपनी होना मैंडेटरी है. सेकेंडली वो अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स के साथ आ रही है अपना इशू लेके. एंड थर्डली ये इनमें से आपकी कोई भी स्कीम इन इज इन प्लेस फॉर दीज थ्री पर्पसेस. आर फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डेफिनेशंस. सो यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो आपको रीड आउट करने हैं. सो फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. सो यहाँ पे जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी हुई है डेट इज अदर देन द डेफिनेशन गिवन फॉर द स्वेट इक्विटी विच वी विल डिस्कस लेटर. सो हियर द एम्प्लॉय इज स्पेसिफिकली फॉर द स्कीम्स. ये अगर स्कीम्स हैं आपकी ईसॉप ईसॉस एंड ईएसपीएस की एक्सेट्रा तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ वहाँ पे कौन कौन से एलिजिबल रहेंगे. सो एन एम्प्लॉय एज डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी working in or outside India or a director of the company whole time or not including non-executive director. So basically executive director is one who derives remuneration from the company but for the purpose of these schemes any director of the company whether in whole time or not including the non-executive director is included in the definition of employee provided he or she is not a promoter or member of the promoter group and not in
and is not an independent director. सो फॉर डायरेक्टर्स यहाँ पे ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं मेनली जो आपको याद रखने हैं कि ही इज़ नॉट बिलोंगिंग टू एनी प्रमोटर ग्रुप एंड इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. Employee as above of group company, subsidiary, associate, whether in India or outside India, and employee of holding company of the company. जो सपोज अगर कोई कंपनी है तो उसकी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे एलिजिबल एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे. बट what the definition excludes an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group, a director who directly or indirectly by himself or through his relatives or through other body corporate holds more than 10% of outstanding equity shares. So these are the exclusions under the definition of employee. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है कि whether the contractual employees are eligible. So yes, contractual employees are also eligible if they are designated as employees by their employer and they work exclusively with the company or its group or holding or subsidiary or associate companies. So एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज आर कवर्ड फॉर दी स्कीम्स तो आपको लिखना है येस इफ designated and exclusively working for these companies. सो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया हुआ है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्रेटेरियल ऑडिटर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे. सो अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर इज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस who is appointed under the Rule 8 of Companies Meeting of Board and its Power Rules 2014 to conduct secretarial audit as per Regulation 24A of SEBI LODR Regulations 2015. जब भी अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं तो आपको इनसे एक सर्टिफिकेट लेना होता है जो आपको हर एजीएम में प्रेजेंट करना होता है दैट यू हैव कंप्लाइड विद दीज रेगुलेशंस एंड इसके लिए आपने पीसीएस से सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है. नेक्स्ट इज ESOS, Employee Stock Option Scheme. So it is a scheme where a company grants stock option to employees. It can be directly or by the company through trust. ये एक ऑप्शन होता है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है टू बाय द शेयर्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द completion of vesting period. Next is ESPS, Employee Stock Purchase Scheme, a scheme where company offers shares to employees as part of public issue or otherwise or through a trust that may buy existing shares from the market, जिसको secondary acquisition भी बोलते हैं. ESOS is the option and option given first and the shares are given later, and in ESPS shares are issued directly like discounted purchase to the employees. तो जब भी सपोज आपका एम्प्लॉई आपका जो कंपनी है वो आईपीओ लेके आता है एंड वहाँ पे एक एम्प्लॉई कोटा भी होता है लाइक शेयर होल्डर कोटा एम्प्लॉई कोटा, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ के लिए भी अगर उन्हें वहाँ पे दिया हुआ है तो दैट विल बी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम. नेक्स्ट इज जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम. Any scheme of the company framed as per these regulations dealing in shares of the company or shares of its listed holding company for employee welfare such as healthcare, hospital care, benefits during sickness, scholarship funds. अगर इन सारे बेनिफिट्स के लिए अगर आपका कोई भी यहाँ पे शेयर्स का स्कीम आ रहा है तो उसको हम जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम बोलते हैं. रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम एज द नेम सजेस्ट, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए होता है ये स्कीम. Sweat equity shares as defined in section 2 subsection 88 of Companies Act 2013. Sweat equity shares की definition क्या रहेगी. It's a equity share issued at discount or for consideration other than cash for know-how in IP rights or value additions given by the employee or its director. Given to the employee and its director. एप्रिसिएशन के यहाँ पे क्या मतलब होता है, जो आपके शेयर एप्रिसिएशन राइट्स में होता है. सो सपोज आपका बेस प्राइस अगर 100 है, मार्केट प्राइस 160 है, तो जो आपका एप्रिसिएशन है वो 60 पर शेयर का हुआ. तो ये जो भी आपका एप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा ये आपको या तो शेयर्स में दे सकते हैं या तो कैश में दे सकते हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्कीम. एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है यहाँ पे. एक्सरसाइज मीन्स मेकिंग एन एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय टू द कंपनी और द ट्रस्ट टू गेट द शेयर्स और टू गेट द एप्रिसिएशन इन कैश अगेंस्ट द वेस्टेड ऑप्शंस और सार्स. सो मान लो आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया एंड द एम्प्लॉय वांट टू एक्सरसाइज हिज राइट्स
एंड वो अपना एप्रिसिएशन जो भी हुआ है शेयर्स पे वो लेना चाहता है, तो एक एप्लीकेशन देता है एंड कंपनी को एंड ट्रस्ट को, जिसके थ्रू वो जो भी उसका बेनिफिट है वो एक्सरसाइज कर पाएगा। ग्रांट डेट क्या होती है? डेट ऑन विच द कंपनसेशन कमिटी अप्रूव्स द ग्रांट। फॉर अकाउंटिंग, ग्रांट डेट इज डिटरमाइंड एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली लिस्टेड कंपनीज जो अपना ईसॉप और बाकी के स्कीम्स जिनके होते हैं, उसमें लाइक अदर कमिटीज लाइक CSR कमेटी, ऑडिट कमेटी एक्सेट्रा, एक कॉम्पनसेशन कमेटी भी होती है। सो कॉम्पनसेशन कमेटी आप सेपरेट भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, और इन मैनी केसेस जो आपकी NRC होती है, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, उसी को जो मैनेजमेंट होता है वो कॉम्पनसेशन कमेटी बना देता है टू लुक आफ्टर दीज स्कीम्स एंड टू रेगुलेट एंड फ्रेम पॉलिसीज फॉर दीज स्कीम्स। तो ग्रांटेड वही होगी जो आपकी कॉम्पनसेशन कमेटी अप्रूव करेगी। सो ग्रांटेड बेसिकली जब आपका जो भी ये स्कीम होगा एंड एम्प्लॉयज़ को आप ये ग्रांट करोगे, अप्रूव करोगे, उस डेट को हम ग्रांट डेट बोलते हैं। अप्रूवल ऑफ दिस स्कीम इज द ग्रांट डेट। ऑप्शन, it is a right given to an employee to purchase or subscribe to the shares in future at a pre-decided price। ये रिलेवेंट डेट, यहाँ पे रिलेवेंट डेट दो होती हैं, ग्रांट डेट होती है, एक एक्सरसाइज डेट होती है। सो द डेट ऑफ compensation committee meeting in which grant is approved is the grant date, and date when the employee gives notice of exercise to company or trust is the exercise date। Stock appreciation rights, SAR, as we have already discussed, it is a right given to employee to receive the appreciation on specified number of shares। Settlement can be in cash or in shares। So यहाँ पे एक explanation दिया हुआ है मैंने। Equity settled as SAR होते हैं यहाँ पे, और SAR settled by way of shares of the company। So for these regulations, SAR means equity settled SARs only। It must involve dealing in company's securities directly or indirectly। So in mainly यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, आपको शेयर्स के थ्रू इनको सेटल करना होता है। प्योर कैश सेटल SARs विदाउट शेयर डीलिंग आर नॉट कवर्ड हियर। सार स्कीम, सार ग्रांटी एंड सार प्राइज, इन दोनों का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। तो सार स्कीम क्या होता है? स्कीम अंडर विच द सार्स आर ग्रांटेड। सार ग्रांटी इज द एम्प्लॉय टू होम सार इज ग्रांटेड, एंड सार प्राइज इज द बेस प्राइस ऑन विच ऑन ग्रांट डेट, एंड इट यूज टू complete compute द एप्रिसिएशन। सो बेस प्राइस के बेसिस पे आपका जो भी एप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होता है। ट्रस्ट यहाँ पे क्या है? ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 will be here for the implementation of the scheme। It may be used for ESOS, ESPS, JEPS and RBS and SARS। सो इन सारी स्कीम्स के लिए आप ट्रस्ट रूट अप्लाई कर सकते हो। सो स्कीम का यहाँ पे हम ये वाले मेनली इस टॉपिक पे आ चुके हैं। स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो या तो डायरेक्टली हो सकता है या तो इनडायरेक्टली थ्रू ट्रस्ट हो सकता है। डायरेक्टली में क्या होता है? वेरी सिंपल प्रोसेस इज देयर, कि आपके मॉड्यूल में भी यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया हुआ है, कि यहाँ पे ये ऑप्शन देते हैं एम्प्लॉयज़ को कंपनी। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शंस विद द कंपनी, एंड जो कंपनी है वो इनको शेयर्स इशू कर देती है। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल प्रोसेस इन केस ऑफ डायरेक्ट रूट। यहाँ पे ट्रस्ट के केस में कैसा होता है? ग्रांट ऑफ लोन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी इज गिवन टू द ट्रस्ट बाय द कंपनी। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट इशू ऑफ शेयर्स टू द ट्रस्ट इज मेड बाय द कंपनी। थर्ड स्टेप में इशू ऑफ ऑप्शंस टू द एम्प्लॉय। Employee exercise these options with the trust, and the trust transfer the shares to the employees, and at sixth step the trust repays the loan to the company। So this is the basic framework in case of trust root, जो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी काम आएगा। सो डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। आई हैव केप्ट इट अनटच्ड, यू कैन just give it a read, and you can try framing answers as per the diagram as well। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रस्ट रूट चूज़ किया है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स आ जाते हैं ट्रस्ट के ऊपर, जो आपको डिस्कस करने हैं यहाँ पे। सो डिसीजन टू इम्प्लीमेंट थ्रू ट्रस्ट मस्ट बी टेकन अपफ्रंट व्हाइल टेकिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर स्कीम। सो ये जो है, जो स्कीम है, ये शेयर होल्डर अप्रूवल के थ्रू अप्रूव होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपको अपफ्रंट डिसाइड करना है कि आप डायरेक्ट रूट लेना चाहते हो या फिर आप ट्रस्ट रूट लेना चाहते हो। सपोज आपने डायरेक्ट रूट लिया है बट बाद में आप उसे चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक फ्रेश स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगी।
एंड ये जो चेंज है वो प्रीजुडिशियल टू एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए। इफ स्कीम इन्वॉल्व सेकेंडरी एक्विजिशन और गिफ्ट, ट्रस्ट इज मैंडेटरी। सिंगल ट्रस्ट मल्टीपल स्कीम्स अलाउड हैं। एक सिंगल ट्रस्ट उसके अंदर मल्टीपल स्कीम्स वो कैरी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट उनको क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड हैं, एंड हर स्कीम के लिए उन्हें सेपरेटली डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है सो दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच स्कीम इज क्लियर। Trust deed must have provisions as per Part A of Schedule 1 of these regulations and must be filed with the recognized stock exchange. So जो ट्रस्ट डीड होती है इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप यहाँ पे स्कीम को डील कर रहे हो ट्रस्ट के थ्रू, तो जो भी पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 1 है उसमें पूरे वहाँ पे क्लॉजेस दिए हुए हैं कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए। इफ़ यू वांट यू कैन गिव इट अ रीड फ्रॉम द मॉड्यूल। Who cannot be the trustees? So this is very important point. A director can be promoter of the company or its group, holding subsidiary associate or their relatives. They cannot be the trustees. Anyone holding more than 10% of shared capital or voting rights in the company cannot be a trustee. If individual one person company are there, then minimum two of such trustees can be there. अगर कोई corporate entity trust बन रही है आपकी तो it can be the sole trustee, और अगर इंडिविजुअल्स हैं तो देर कैन बी मिनिमम टू। Trustees cannot vote on shares held by the trust to avoid the misuse. Trustees must ensure shareholders' approval is obtained for trust implementation and secondary acquisition. Secondary education is basically जो ट्रस्ट होगी वो सेकेंडरी मार्केट से आपके शेयर्स लेगी। सो बेसिकली कंपनी खुद के शेयर्स उठा रही है मार्केट से थ्रू ट्रस्ट, तो इसको हम सेकेंडरी एक्विजिशन बोलते हैं। Trust cannot deal in derivatives, only delivery based transactions for secondary acquisition is allowed. Company may lend money to trust subject to the Companies Act 2013 and rules so that trust can acquire shares by new issue or secondary acquisition. For stock exchanges disclosures, trust shareholding is classified as non-promoter, non-public shareholding. So जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन देते हो रिगार्डिंग द शेयर होल्डर पैटर्न एंड अदर इंटीमेशंस, उसमें जो आपका ये स्कीम का जो जो एम्प्लॉयज़ को अलाउड होता है, जिनको ग्रांट होता है शेयर्स, उसको आप किस में पुट इन करते हो, कौन सी हेड में जाता है, वो नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, ना ही वो प्रमोटर का है ना ही वो पब्लिक का है। These shares will not form part of public shareholding, thus not counted towards 25% mandatory public shareholding under the Securities Contract Regulations 1957। जो आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का यहाँ पे थ्रेशोल्ड होता है कि 25% होना ही चाहिए, उसमें ये जो आपका ईसॉप का है वो काउंट नहीं होता है। स्कीम्स का जो भी आपका यहाँ पे शेयर्स का नंबर होता है दैट विल नॉट बी काउंटेड। सेकेंडरी एक्विजिशन लिमिट पर ईयर इज मैक्सिमम 2% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सो जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल में आपका पेड अप कैपिटल था, पेड अप इक्विटी कैपिटल था, उसके 2% से ज़्यादा का आप सेकेंडरी एक्विजिशन नहीं कर सकते। एंड टोटल सेकेंडरी एक्विजिशन होल्डिंग बाय ट्रस्ट एज पर द पेड अप कैपिटल ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डिफर्स, कि आपकी स्कीम कौन से इन्वॉल्व है वहाँ पे। सो अगर आपके जो भी आपका यहाँ पे मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो शेड्यूल के हिसाब से पार्ट ए बी सी की स्कीम्स अगर वो हैं तो 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए सेकेंडरी एक्विजिशन। अगर पार्ट डी एंड ई की स्कीम्स हैं तो 2% से ज़्यादा एक्विजिशन नहीं होना चाहिए। एंड ओवरऑल जो भी आपका है वो 5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए स्कीम्स के ऊपर आपका सेकेंडरी एक्विजिशन। Unappropriated inventory, shares acquired by trust through secondary acquisition but not yet backed by grants, must be appropriated within next financial year or can be extended to second subsequent financial year with compensation committee and NRC approval। इसका क्या मतलब है, सपोज आपने सेकेंडरी एक्विजिशन कर लिया, आपने सेकेंडरी मार्केट से ट्रस्ट ने सपोज एन नंबर ऑफ शेयर्स उठा लिए टू टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज विद द कंपनीज अप्रूवल। लेकिन सपोज अगर उन्हें 1,000 शेयर्स उठाए थे, उसमें से अगर उन्हें 50 लाख शेयर्स ही ग्रांट किया है बोर्ड मीटिंग में शेयर होल्डर्स अप्रूवल दे के, एंड अभी भी 50 लाख जो आपके शेयर्स हैं वो पार्क्ड हैं, वो कहीं पे भी यूज नहीं हुए हैं, तो उसको आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक अप्रोप्रिएट करना है या ग्रांट करना है विद द शेयर होल्डर्स अप्रूवल।
अगर एक साल में भी नहीं हो पाता है, जेन्युइन रीजंस हैं, तो उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में आप कर सकते हो। एंड फॉर दैट मैटर आपको वहाँ पे एनआरसी एंड कंपनसेशन कमेटी की अप्रूवल लगेगी। Shares acquired via secondary acquisition must be held for minimum 6 months, except when transferred as allowed under the regulations. इसका क्या मतलब है कि ट्रस्ट भी क्या कर सकती हैं, शेयर्स वहां से निकाल सकती हैं सेकेंडरी मार्केट से एंड तुरंत उसको बेच सकती हैं। तो वो कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी कि वो इवेंचुअली ट्रेड कर रहे हैं शेयर्स में एंड उसका शेयर्स का मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 6 मंथ्स के लिए शेयर्स को अपने पास रखना है, अनटिल अनलेस देयर आर जेन्युइन रीजंस लाइक आपको शेयर्स को ट्रांसफर करने हैं या वहाँ पे आपका बायबैक हो रहा है या एक्चुअल में वहाँ पे आपको ग्रांट करने हैं शेयर्स को। ट्रस्ट में डू ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ओनली इन फॉलोइंग सिचुएशन: ट्रांसफर टू एम्प्लॉय अंडर द स्कीम्स, जैसा कि वी हैव डिस्कस, पार्टिसिपेशन इन ओपन ऑफर, बायबैक, डीलिस्टिंग एंड अदर exit given by the company. Trust cannot become trading mechanism, as we have discussed. ट्रस्ट को ट्रेडिंग मैकेनिज्म के फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते। इट कैन सेल शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट ओनली व्हेन दिस इज टू हेल्प the employee fund the exercise price, tax obligations and related expenses on exercise of ESOS, on vesting exercise of SAR under the Part C schemes. So in these cases here are few of the cases mentioned जिसमें जो भी आपके जो शेयर्स हैं that can be sold in the secondary market. You can just give it a read. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? विच एम्प्लॉयज कैन पार्टिसिपेट इज डिसाइडेड बाय द कंपनसेशन कमिटी, सो नो ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट, इट डिफर्स केस टू केस बेसिस। सो एलिजिबल एम्प्लॉयज यहाँ पे कौन कौन से होंगे वो कॉम्पनसेशन कमिटी डिसाइड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसी। कॉम्पनसेशन कमिटी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। सो एज आई हैव सेड, company must have a compensation committee to administer and supervise the schemes. If scheme is routed by a trust, this committee delegates the administration to the trust. The committee composition shall be as per the regulation 19 of the SEBI LODR regulations. So basically जो इसका कमिटी का कॉम्पोजिशन होगा वो एनआरसी की जैसा होगा। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनी कैन ऑल्सो नोटिफाई इट्स नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी एज द कॉम्पनसेशन कमिटी अंडर दिस रेगुलेशंस। तो या तो आप एक सेपरेट कॉम्पनसेशन कमिटी फॉर्म कर लो, या तो यू कैन नोटिफाई योर एनआरसी एज अ कॉम्पनसेशन कमिटी एंड उसका कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा जो आपका रेगुलेशन 19 में एलओडीआर के लिए है, एलओडीआर में है फॉर एनआरसी। कॉम्पनसेशन कमिटी मस्ट फॉर्मुलेट डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्कीम्स। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपके पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 1 में दी हुई हैं। इट मस्ट फ्रेम पॉलिसीज टू इंश्योर नो वॉयलेशन ऑफ सेबी पीआईटी रेगुलेशंस, सेबी prohibition of fraudulent and unfair trade practices regulation 2003 by the trust company and the employees. शेयर होल्डर्स अप्रूवल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि आपको पहले ही लेना है अप्रूवल, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो कुछ शेयर्स, आपको जो पब्लिक है एट लार्ज जिनका शेयर्स वहाँ पे इन्वॉल्व है, दे मस्ट नॉट बी अनअवेयर कि आपने क्या यहाँ पे सेकेंडरी एक्विजिशन करके शेयर्स निकाले हैं मार्केट से। ठीक है, सो सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स resolution is must. Secondary acquisition when capital expense to maintain 5% of cap of increased capital, grant of options, SAR shares benefits to employee to subsidiary or holding company, grant of options, SAR shares benefits to identified employees if in any 1 year it equals or exceeds 1% of issued capital. So in these cases में आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगेगी। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि सपोज आपने कि एक नंबर बोला कि इतना परसेंट ऑफ कैपिटल हम निकाल रहे हैं टुवर्ड सेकेंडरी एक्विजिशन, लेकिन जो आपका कैपिटल है, सपोज मान लो कि आपका राइट्स इशू आ गया या कोई ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन हो गया जिससे आपका पेड अप कैपिटल एक्सटेंड हो गया, तो फिर आपको उसी प्रपोर्शन को मेंटेन करने के लिए आपको फिर एक और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि अब हम इस कैपिटल का इतना परसेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो पहले कैपिटल था वो कम था। सो वो परसेंटेज मस्ट नॉट एक्सीड द 5% कैप ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल। वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ स्कीम, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जो स्कीम बनाई है उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है।
बट सपोज अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसको मीट आउट करना है, उससे मैच करना है आपको, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं है स्पेशल रिजोल्यूशन। फॉर फॉर अदर पर्पसेस जहाँ पे भी प्रीजुडिशियल है एम्प्लॉयज़ के लिए, वहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स की रेजोल्यूशन लगेगी। अगर मान लो जो भी पहले आपका टर्म्स एंड कंडीशंस था और अभी जो आप लेके आ रहे हो वो कहीं ना कहीं प्रीजुडिशियल है फॉर एम्प्लॉयज़, तो स्पेशल रिजोल्यूशन इज नीडेड। एंड आपको नोटिस में क्या क्या देना है, वेरिएशन की सारी डिटेल्स। रैशनल में मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम द वेरिएशन, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स हो रहा है। कंपनी में reprice the unexercised options, SARs and shares if scheme has become unattractive due to fall in market price। तो सपोज अगर बहुत ही ज़्यादा फॉल हो गया मार्केट प्राइस का, तो जो अनएक्सरसाइज्ड हैं, जिनका अभी एम्प्लॉयज़ ने एक्सरसाइज नहीं किया, जो बस ग्रांट हुए हैं एंड वेस्टिंग पीरियड तक हैं, उनका वो रिप्राइसिंग भी कंसिडर कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते टाइम। बट repricing must not be detrimental to the employees and must be approved by the special resolution of the shareholders। तो सपोज इसका क्या मतलब है, अगर ईसॉप का जो आपका एक्सरसाइज प्राइस था वो 700 का था, एंड कंपनी की जो प्राइस है अभी 250 चल रही है, तो 250 शेयर्स के लिए आप 700 क्यों दोगे अभी। तो यू कंपनी में कंसिडर एंड रिप्राइस दी ऑप्शन से 300 तक का वो कर सकती है। सो वेन एवर दे थिंक फिट, वो अपने बेनिफिट के हिसाब से एम्प्लॉयज कैन एक्सरसाइज दी ऑप्शंस। Winding up of schemes. On winding up, excess money and shares remaining with the trust after meeting the obligations shall be used for the repayment of loan or distribution to employees, or with shareholders' approval transfer to the another scheme under these regulations as recommended by the compensation committee। So कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चली जाती है, मतलब वाइंडिंग अप ऑफ स्कीम जब हो जाता है, तब क्या यहाँ पे सिनेरियोज होंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ये जो है वो एक एम्प्लॉय के लिए उसी के बेनिफिट के लिए, दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एल्स, ओनली दैट एम्प्लॉय कैन एंजॉय द बेनिफिट। ऑप्शन कैन नॉट बी प्लेज्ड, हाइपोथिकेटेड, मॉर्टगेज्ड और एलिनेटेड। अगर डेथ हो गई है एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, तो वो आपको लीगल ईयर्स को चले जाता है। अगर परमानेंट इनकेपेसिटी हो जाती है वैल इन एम्प्लॉयमेंट, तो इट शेल वेस्ट इन एम्प्लॉय ऑन दैट डेट। अगर रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन हो जाता है, सो अगर यहाँ पे बेनिफिट ग्रांट हुआ था बट वेस्ट नहीं हुआ था, वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ था, तो ये जो आपका बेनिफिट था ये लैप्स हो जाएगा एंड एक्सपायर हो जाएगा। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स अंडर दिस स्कीम, सो जो भी आपके इस आपके शेयर्स हैं जब वो फाइनली एक्सरसाइज हो जाएंगे, तो इसको इमीडिएटली आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी कराना है। इफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आर ऑलरेडी लिस्टेड, scheme must be in compliance with these regulations. Company must file a statement prescribed by the SEBI, obtain in principle approval from stock exchanges. Wherever options and SARs are exercised and shares are issued, company must inform stock exchange as prescribed by a SEBI statement. Certificate from secretarial auditor, as we have already discussed in the definition. At each AGM, board must place before shareholders a certificate from secretarial auditor stating that the scheme has been implemented in accordance with its regulations and in accordance with the resolution of the company in general meeting। Disclosures यहाँ पे लिखे हुए हैं। Disclosures as required under the Companies Act 2013। Employee benefits, board must disclose scheme-wise details. This usually appears in board report or corporate governance section of your annual report. Administration of specific schemes, employee stock purchase scheme, administration and implementation. ESPS scheme must clearly state how it will be implemented and operated. Pricing and lock-in वहाँ पे आपका mention होना चाहिए। शेयर जो भी इशू होते हैं वो लॉक इन होने चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। एक्सेप्शंस क्या क्या है, इफ ESPS इज पार्ट ऑफ पब्लिक इशू एंड एम्प्लॉयज गेट शेयर्स एट सेम प्राइस एज पब्लिक, वहाँ पे कोई लॉक इन नहीं होगा, क्योंकि जो पब्लिक पैसा जो दे रही है वही पैसा एम्प्लॉय भी दे रहा है, तो वहाँ पे कोई लॉक इन नहीं होगा, एम्प्लॉय को कोई स्पेशल बेनिफिट मिला नहीं है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हियर आर सम जेनेरिक conditions, you can just give it a read.
Retirement benefit scheme, we have discussed in the definitions, and here is a fewer regulations and terms and conditions for this scheme is given. Sweat equity shares पे आते हैं हम. Sweat equity shares issued by the listed company. So introduction and purpose क्या होता है? Sweat equity is used for attracting and retaining top talent in the company, rewarding their know-how, IP or value additions, aligning the employees' interests with growth of the company. So sweat equity shares are equity shares issued to the directors or employees at discount or for consideration other than cash for providing with the know-how, IP or value additions. रिटेंशन के लिए होता है एक रिवॉर्ड, इन रिवॉर्ड kind of thing, increasing the employee sense of ownership in the company. For listed companies, sweat equity must comply with the Companies Act plus the SEBI, SBEB and sweat equity regulations 2021. अगर मान लो कोई सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी है, उसको सिर्फ कंपनीज एक्ट कंप्लाई करना है, एंड अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो बोथ ऑफ दिस रेगुलेशंस नीड टू बी कंप्लाइड विथ. एप्लीकेबिलिटी क्या है यहाँ पे? डज नॉट अप्लाई टू अनलिस्टेड कंपनी. इफ अनलिस्टेड कंपनी इशू कर रही है तो उसको सिर्फ कंपनी से कंप्लाई करना है. अगर वो बाद में आईपीओ लेके आती है तो उसको दोनों रेगुलेशंस कंप्लाई करने हैं. दिस इज वेरी बेसिक. पहले हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी थी फॉर दी स्कीम्स अंडर दिस रेगुलेशंस. यहाँ पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन है फॉर स्वेट इक्विटी. So for sweat equity, employee means an employee of the company working in India or abroad. First one is same. A director of the company, whether in whole time or not. Note, promoter group can also receive sweat equities subject to special rules explained below. So जैसे कि वहाँ पे आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व थे, यहाँ पे इस डेफिनेशन में नहीं दिया हुआ है. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द डेफिनेशन फॉर द स्कीम एंड फॉर द स्वेट इक्विटीज. Issue of sweat equity shares to employees. A listed company may issue sweat equity shares as per Section 54 of the Companies Act, and these regulations for providing these and these things we have already discussed in the definition. Maximum quantum क्या है? Not more than 15% of the existing paid up capital, paid up equity share capital in a year, and along with this condition, overall sweat equity in company must not exceed 25% of paid up capital at any point. So it is special for innovators growth platform. Listed companies के लिए यहाँ पे क्या threshold है? 15% of paid up equity capital in a financial year, and overall limit should not exceed 50% of paid up capital, paid up equity capital. So this higher limit allowed for 10 years subject to the incorporation and registration. Special resolution के यहाँ पे क्या क्या conditions हैं? So section 54(1)(a) स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, which must contain disclosures as per the schedule 2 of this regulations. If sweat equity is proposed to employee who belong to promoter and promoter group, approval must approval must be by simple majority resolution. Voting must be through postal ballot or e-voting as per the company's M&A rules 2014. Management and Administration Rules 2014. Promoter and promoter group cannot vote on such resolution. This is very basic. अगर आप उनको ही दे रहे हो तो they cannot vote on these resolutions. Each sweat issue requires a separate resolution. Resolution is valid for maximum 12 months from the date of passing. ये आपने Companies Act में भी पढ़ा होगा, Section 54 में. Pricing of sweat equity shares. Price must be as per the pricing requirement for preferential issue to persons other than QIBs under the SEBI ICDR Regulation 2018. So, sweat equity pricing follows preferential issue pricing formula. ICDR में जो pricing का वहाँ पे फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमको फॉलो करना है. वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होती है इन स्वेट इक्विटी शेयर्स के इशू में. वैल्यूएशन ऑफ नो हाउ, आईपी, वैल्यू एडिशन कितना हुआ है वो मर्चेंट बैंकर्स आपको करके देंगे. मर्चेंट बैंकर कैन कंसल्ट एक्सपर्ट्स एंड वैल्यूअर्स एज नीडेड based on the nature of industry and nature of know-how, IP, value addition provided. Merchant bankers must obtain a certificate from an independent chartered accountant certifying that valuation is in line with the relevant accounting standards. Practical flow इसका कैसा होगा? बोर्ड प्रपोज करेगी स्वेट इक्विटी, उनको लेके आना है अपने एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स के लिए. मर्चेंट बैंकर अब ऐसी वो
ये उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं हो सकता है, क्वालिटी के बेसिस पे। ये आपको क्वांटिटेटिव नेचर में भी इसको आइडेंटिफाई करना है कि कितना यहाँ पे वैल्यू एडिशन था। सो मर्चेंट बैंकर वैल्यूज द इंटेंजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन। सी सर्टिफिकेट एक लेना होता है, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद इशू एंड फाइलिंग्स आर डन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का यहाँ पे एक पॉइंट है, ऑडिटर सर्टिफिकेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। As in case of schemes, a certificate from the secretary auditor for sweat equity is also needed. Ceiling on managerial remuneration. So, sweat equity amount is treated as a part of managerial remuneration under the section 196 and 197. When sweat equity is issued to any director or manager and issued for non-cash consideration, which does not result in an asset, that can be carried to balance sheet as per the accounting standards. So effect क्या होता है इसका? This may impact the overall remuneration limits. So board and CS must check before this issuing sweat equity shares to the directors and the managers. So यहाँ पे जो remuneration का criteria होता है वो भी आपको check करना होता है while you are issuing the sweat equity shares. Lock-in of sweat equity shares. Sweat equity shares must be logged in for a period specified for preferential issue under the ICDR. Listing of sweat equity shares. Sweat equity shares should also be listed with the recognized stock exchanges. So after the issue, company must complete the listing formalities with the stock exchanges. Applicability of SEBI SAST regulations, substantial acquisition of shares and takeover regulations. ये भी आपको चेक करने होते हैं. एग्जाम्पल, अगर प्रमोटर डायरेक्टर रिसीव्स स्वेट इक्विटी शेयर्स लीडिंग टू देयर होल्डिंग क्रॉसिंग 25% और क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट्स, दे मे ट्रिगर अ ओपन ऑफर. यहाँ पे ओपन ऑफर का जो क्लॉज होता है SAST में वो ट्रिगर हो जाएगा, वो करना मैंडेटरी हो जाता है. वी विल डिस्कस इन द पर्टिकुलर चैप्टर. जनरल ऑब्लिगेशंस है यहाँ पे. कंपनी मस्ट इंश्योर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर जनरल मीटिंग contains the disclosures required under the section 54 of Companies Act and regulation 32 of these regulation we are studying. Secretarial auditor का सर्टिफिकेट यहाँ पे एक होना चाहिए. Within 7 days of issue of sweat equity, company sends statement to recognized stock exchanges mentioning आपने कितने नंबर ऑफ sweat equity shares इशू किए हैं, उसका प्राइस क्या था, टोटल अमाउंट आपको कितना मिला है, डिटेल्स ऑफ पर्सन जिनको आपने इशू किया हुआ है, एंड चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न बिफोर एंड आफ्टर द issue. So this is the basic obligation which you have to fulfill while you are coming with your sweat equity shares issue. So here we are done with the revision of our chapter number 9. Thank you all and all the very best for examinations. I will be coming up with the further videos very soon. And before examination, we will be done with all the chapters of this subject. And you can revise during the examinations and before the examinations. It will be very efficient for your preparations. So stay hydrated, stay confident. Thank you.